can we recall that what we can include in the phenotypes of the microorganism and what shall be, at above levels or outside of phenotypes? So one by one, थोड़ा थोड़ा सा input दें इसमें. Ma'am, any kind of biochemical enzymes through which they are controlling their motility or kind of anything they sense, तो हम उनको phenotype में ऐड कर सकते हैं जिससे वो The different metabolism, characteristics, the metabolism. मेटाबॉलिज्म भी कह सकते हैं बिल्कुल, और different characteristics जो उनको specific कर रहे हैं वो phenotype में हम उनको consider कर सकते Include हैं. कर सकते हैं, right? So the pathways which are, governing not only the energy flow but also involved in the formation of certain structures or, different Exact appearance उनकी जो physical appearance हो रही है, जो उनको shape appearance बन में रही है, involved होते हैं, exactly. तो ये सारा जो है इसके अंदर आएगा. phenotype. और कौन सी के चीज ग्रुप आएगी? कैरेक्टरिस्टिक्स को भी एरोबिक एनारोबिक या कार्बन डाइऑक्साइड को यूटिलाइजेशन को चेक करते केमिकल हैं. प्रॉपर्टीज जो उनकी होती हैं, ऑक्सीडेशन हो सकती है, नहीं हो सकती, कैटालिसिस उनमें है या नहीं है, या और कोई नाइट्रोजन फिक्सेशन या डिफरेंट एबिलिटीज, फास्फोरस सॉल्युबलाइजेशन या माइक्रोन्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन, कोई भी जो दूसरी केमिकल एबिलिटीज उसके अंदर होती हैं, नॉट ओनली इन्वॉल्विंग द बायोकेमिकल रिएक्शन बट ऑल्सो द chemical reactions are also involved in the phenotypic characteristics of the microorganisms. Although we know that this phenotypic expression is governed by the genome, right? There is nothing like this that they do have the phenotypic characteristic, but there is no, genomic information or no genomic code behind it. For all kind of life information, there is a genomic code behind it. But here we are not looking into the DNA of the organism, but we are looking into the expression of the DNA, that how much expression is occurring and what kind of expression is occurring in the particular system in which you are studying the microorganism. So that expression can be different in different environments, as we know that they tend to behave differently in different types of environments. So first of all, in the phenotypic expression profiling, we are not only looking for the optimal growth parameters. Optimal growth parameters में हमने देखा था, it could be a range of temperature, it could be a range of pH, it could be a range of other nutrient compositions, it could be a range of salt composition in which they can grow. But out of that, we have to find the one which is actually best required for their growth, in which you can say that they are going to their optimal growth, right? तो वो उनका आप optimal units भी निकालते हैं, temperature के भी, pH के भी और बाकी पैरामीटर्स में भी, और इसके अलावा रेंज ऑफ केमिकल कंपोजिशन उनकी हो सकती है, जिसको आप सारी को एनलिस्ट करते हैं फिनोटिपिक प्रोफाइलिंग के अंदर, राइट? सो if I say that I'm going for phenotypic profiling, so can I use the 16S rDNA expression in the phenotypic profiling as well? No, देखिए, ma'am. जितनी भी हमने phenotypic properties की बात की है, I have also understood that there is a kind of genomic information behind it, right? So 16S rDNA is a genotypic feature which is present molecular clock and which is also transcribed as 16S ribosomal rRNA. So I'm asking, is there a kind of phenotypic expression which we can use for the 16S rDNA? Ma'am, 16SR gives identification and not characteristics. You told in the last lecture. Identification means the basis of similarity and all that, while characteristics means features, trait. So 16SR will be good for could be the molecular clock, but when we go to the housekeeping genes, the 16S RNA is not a good choice. Its results are not enough for certain species to put them in a taxonomic level. So for that we need other tests like pH, NaCl, etc. Temperature. So pH, NaCl, it depends on environment where microorganism was grown, and these are the phenotypic tests.
Right, Vanva, thank you very much. But I have to rectify a little bit over here that we cannot say that some other features are better in determination and this one is not, right? So none of the feature is equivalent to this actually because of the position it has attained and because of, you can say, universality it is having, and we are using this, right? So exceptions are definitely over there, but it is actually at a position of the universal trait which can be used for identification purpose. But here we know that there is no protein expression attributed to the 16S rDNA. This is actually component of the machinery which is involved in the protein synthesis. Obviously, expression of 16S rDNA, expression in terms that transcription into 16S ribosomal RNA is very, very important, and we are knowing that this is ubiquitous and this is happening. But we cannot look for any phenotypic trait which is we can say which is attributed to 16S rDNA. 16S rDNA की कोई phenotypic trait नहीं होती है, because या तो प्रोटीन सिंथेसिस की मशीनरी होगी या नहीं होगी, ऐसे ही है ना? अगर होगी तो सेल सरवाइव करेगा बिकॉज प्रोटीन सिंथेसिस विल बी हैपनिंग, और अगर प्रोटीन सिंथेसिस की मशीनरी नहीं है तो फिर सेल सरवाइव ही नहीं कर रहा, तो आप उसमें क्या उसका फिनोटिपिक एक्सप्रेशन को चेक करेंगे, राइट? सो अगर cells are growing, it means the ribosomal organelles are working perfectly, because we know that translation जब start होती है तो पहले 50S का सब यूनिट आता है, फिर उसके साथ आके आपका मैसेंजर RNA अटैच हो जाता है, और जब आपके पास पहला अमाइनो एसिड आ जाता है तो फिर उसके बाद वहाँ नीचे आके 30S का सब यूनिट, अगर आप ट्रांसलेशन को थोड़ा सा ज़हन में लाते हैं तो ट्रांसलेशन शुरू हो जाती है. सो इफ़ द सेल्स आर ग्रोइंग, इट मीन्स द प्रोटीन सिंथेसिस इज हैपनिंग. So all the protein expressions are giving us indication that yes, the 30S subunit to which the component is 16S is over there, and that's why the protein synthesis is happening, right? Organelle is over there. लेकिन कोई भी प्रोटीन एक्सप्रेशन ये इंडिकेट नहीं कर सकता कि कौन सा 16S rDNA इसके अंदर है. For 16S rDNA analysis, definitely we will be going for the phylogenetic analysis on the basis of the sequence of 16S rDNA. So we can say that this is undisputed backbone of prokaryotic classification and identification, right? So it is having the taxonomic rank, it is the taxonomic marker, but only the genome expression, the genome itself can be used for the taxonomic positioning of the microorganisms, and which is at the level of genus. ठीक है? जीनस से लेकर डोमेन तक ये आपको क्लासिफाई करवा देता है 16S राइबोसोमल आरएनए जीन और 16S आरडीएनए जिसको आप कहते हैं. ये आपको जीनस से लेकर डोमेन तक, उसकी डोमेन आपको पता है ना, प्रोकैरियोट्स में बैक्टीरिया हैं या आर्किया हैं, ठीक है? सो दिस इज वेरी वेरी यूजफुल, वेरी वेरी कॉम्प्रिहेंसिव एस्पेक्ट, एंड वी कैन यूज इट, बट दिस मोलेकुलर मार्कर इज रिजॉल्विंग द फाइलोजेनी ऑन द बेसिस ऑफ द DNA sequence, not on the basis of the phenotypic expression, we can say, right? And we know that there could be 2% or 5% differences in the microorganism, and on the basis of those differences we can try to look into that what are the closest matches of these microorganisms and what are distant, and that's how we go for other tests, right? So we now start focusing on the phenotypic expressions once again, because we have defined the traits as the phenotypic expression, that these are the observable characteristics, observable traits which are resulting from the expression of, these phenotypic traits are resulting from the expression of genes. Genotype, ma'am. exactly. These are happening because of expression of certain genes present in the organism. So no matter in what circumstances the expression is happening, no matter it is in the presence of some selection pressures, or no matter it is in the presence of some specific growth conditions, but this is because of the expression of genes in the microorganism, and largely it is controlled or regulated by the, largely it is controlled, the expression is controlled by the environmental conditions, right? Because they tend to, जो बात मैंने शुरू से बताई है, मैं उसी चीज को एक strongly environmental condition में
बिकॉज के जो डिफरेंट फिजिकल और बायोलॉजिकल पैरामीटर वर्क कर रहे होते हैं, क्योंकि कम्प्लेक्स इन्वायरमेंट है और बहुत सारे उसमें ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं, सिर्फ एक माइक्रोब नहीं है, और डिफरेंट तरह के फैक्टर्स आ जाते हैं जैसे टेम्परेचर, पीएच, मेटाबोलाइट्स हो गए, माइक्रोन्यूट्रेंट, मैक्रोन्यूट्रेंट, ये सब चीजें जो ड्रास्टिक फैक्टर्स हैं, जो सब चेंजेस आती हैं, बिल्कुल। देखिए प्रेशर बट आता है, राइट ये सब उसके राइट नाउ फैक्टर। आप उस इकोसिस्टम में एक्सप्रेशन की बात नहीं कर रहे। अब इकोसिस्टम में फिनोटाइप डिफरेंट हो सकती है एज कंपेयर टू द फिनोटिपिक एक्सप्रेशन ऑन द प्लेट, बिकॉज जब आप इन प्लेट पे लेके आते हैं तो आप आइसोलेट कर लेते हैं, ठीक है, और आप बड़े कंट्रोल्ड सिस्टम में ले आते हैं, बट स्टिल यू आर चेंजिंग वेरिएबल्स, आप उसमें डालते रहते हैं, डिफरेंट उसको कंडीशंस देते रहते हैं, एंड यू ट्राई टू सी द प्रोफाइलिंग के किस किस तरह से ये कर रहा है, और उस प्रोफाइलिंग के करने में आप उसकी रेंज को चेक करते हैं, डिफरेंट कार्बन सोर्सेज देते हैं, यू गिव look for composition of the fatty acids or other lipids, और इस तरह से आप उसकी composition निकालते रहते हैं, but we know basically I want you to fix this information that ये जो phenotypic characteristic हैं observable characteristics होते हैं because of the expression of the genes, everything behind it actually at the gene level, right, and उसमें भी उनकी इंटर जिसे कहेंगे कि इंटरडिपेंडेंसी होती है एक्सप्रेशन के अंदर, अप रेगुलेशन, डाउन रेगुलेशन, स्टॉपिंग एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स और अदर parameters in the environmental or condition, these are the major they are playing major role in the expression which we see, ठीक है, उसकी बेसिस पे वो चेंज हो जाता है, बिकॉज उनका कंट्रोल मैकेनिज्म ऐसा नहीं है जिसमें वो एनवायरनमेंट के चेंज होने पे होम्योस्टेसिस अटेन कर लें, राइट। सो इम्पॉर्टेंट प्रीरेक जो है in the study of the phenotype of the prokaryote is a fact that when we are trying to look into the phenotypic expression of a particular microorganism in the microbiological laboratory, we are actually isolating the microorganism as a pure culture, not a mixed culture. So once we are getting it as a pure culture, we are cultivating it in on different kind of conditions, and then we get the profile, and ultimately we can go for the whole genome thing, and then we can see that what we have seen as an expression and what else can be expression in it, and this is all called as the prediction of the traits. It could be that we can predict certain traits which it can show in given certain complex environments, which we are definitely not giving when we are isolating it as a pure culture, right? And these modifications and media things we are adopting and we are developing, and I have introduced at this point to you the term of culturomics. So culturomics is not only giving different media and giving different nutrients and giving different temperature and pH, it is also, along with the variable conditions, it is development of certain kind of assemblies or procedures in which you can say that you can isolate very different and diverse kind of microorganism out of the environmental samples. And this is, you can say, a kind of development in the procedures of isolation and purification of the microorganism. And once you have achieved the single culture and you have studied it, and now you have to use that single culture for your own purposes, so what you can do then, you can develop the very big reactors, sort of very big kind of chambers in which you can grow the microorganisms, and then high throughput production पे आप जा सकते हैं ना. Like if there is an enzyme which is produced in the microorganism, what you will be doing, आपने उसको माइक्रोऑर्गेनिज्म को आइसोलेट कर लिया, आपने उसको स्टडी कर लिया, इसके बाद आप उसको जब प्योरीफाइड और स्टडीड है सारे का सारा आप यूज़ करना चाहते हैं एंजाइम प्रोडक्शन में, तो आप उसकी टॉप अप कर लेंगे प्रोडक्शन, क्योंकि आपको ग्रोथ पैरामीटर्स पता है, तो आप बड़े बड़े चैम्बर्स ऐसे बनाएंगे जिसमें आप ग्रोथ को कंट्रोल करेंगे. देखिए छोटी सी फ्लास्क में ग्रोथ को कंट्रोल करना बड़ा ईजी है. यूनिफॉर्म टेम्परेचर रखेंगे, यूनिफॉर्म पीएच रखेंगे, और उसके जो ग्रोथ के मीडिया की फॉर्मुलेशन है वो यूनिफॉर्म रखेंगे, कंपोजिशन चेंज नहीं होनी चाहिए. सो व्हेन यू हैव डन ऑल दैट एंड तो आप बड़े चैम्बर में जाके क्या करेंगे कि आप उन कंडीशंस को अप्लाई करेंगे जो आपने उसकी ऑप्टिमल फाइंड आउट कर ली थी, एंड देन यू कैन ग्रो इट एज अ बिग culture. And after that, this is the downstream processing, that how you can downstream process to isolate the enzyme, or you want to use the whole culture thing. Probiotics का आपने सुना हुआ है, right?
So this is ultimate utilization of the culture to which you can go for once you have studied all these phenotypic typic things and you have optimized these things. So this is how it is very very important not only to know it better कि हमें पता चल जाए कि ये कैसे ग्रो करता है but also to utilize it further application के लिए भी ये important है इसकी that we should know that what kind of growth conditions it is requiring. So do you consider that these phenotypic traits they tend to be quite easy to recognize or it is quite difficult to recognize the phenotypic traits? मैम डिफिकल्ट टू How? क्योंकि मैम उसमें थोड़ी रेंज होती है तो हाँ range Because होती है ma'am, because it requires good observation skills as well. Simply, yeah, like I give you a sample and I give you the culturing of the microorganism on the plate and you people will be looking for the colony morphology on the plate. ठीक है जब आपको मैंने माइक्रोस्कोप नहीं दी और एक ही मीडिया दे दिया सबको तो आप उसकी appearance को check करेंगे ठीक है. So it will be starting from the spreading of the inoculum on the plate to your observation at all stages, right? अगर आपकी inoculation की spreading different होगी तो उसकी appearance plate के ऊपर different होगी. इसके अलावा आपकी अपनी observation skills बहुत important है इसके अंदर. That how you use your skills in recognition of it. Basically, if I am characterizing on the traditional traits, traditional basis के जी ये जो है वो एक्सट्रीम एनवायरनमेंट से आया है ये आर्किया में जाएगा और ये जनरल एनवायरनमेंट से आया है ये बैक्टीरिया में जाएगा ये तो जनरली आपकी ट्रेडिशनल बेसिस है इसकी लेकिन phenotypic traits it seems or tend to be easier to recognition but it requires very good observation skills of the researcher as well. So you should be realizing that even on the basic plate when you are doing your basic microbiology should be very very good. Like you should know that what is the optimum way of culturing and what are the basic traits which you can look into in the colony morphology. If the margins are smooth or wavy, if the colony is round or it is having smudgy appearance or it is having the gum production or not, so it's different features. तो ये आपकी ऑब्जर्वेशन पे भी मैटर करेगा. अब कोई कहे कि मुझे तो ये स्मूथ मार्जिन नजर आते हैं और दूसरा कहे कि मुझे तो ये वेवी मार्जिन नजर आते हैं तो उसमें आपकी ऑब्जर्वेशन के अलावा आपकी अंडरस्टैंडिंग के वेरिएबल्स भी होते हैं. अब यहाँ पे जाके कोई ऐसी मशीन नहीं है फीचर्स के ऊपर बेसिक फीचर्स के ऊपर रिसर्चर ने अपने आप को खुद build up करना होता है. You have to realize that they are coming from the complex environment and the features are also complex. Like there could be certain features which can be tested with the help of the different सबस्ट्रेट्स जैसे आप उसकी एरोबिक एनारोबिक कंडीशन को चेक कर सकते हैं ऑक्सीडेज टेस्ट में या कैटालेज प्रोडक्शन को चेक कर सकते हैं या दूसरे आप उसको कर सकते हैं लेकिन ये जो कॉलोनी और सेल मॉर्फोलॉजी है इसको चेक करने के लिए आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाना पड़ेगा ठीक है. And actually it starts from there when you are on a plate and you look at the colonies so you have to look into the colony morphology very precisely and then you determine that whether this is a single culture or not and after that you go under the microscope and see if the cultures are pure or not and then you carry on several step by steps and you keep on determining the complex features step by step. एकदम से एक कल्चर के सारे टेस्ट नहीं लग जाते हैं ठीक है बट प्योर कल्चर का होना और प्योर कल्चर को अंडरस्टैंड करना ये जो है रिसर्चर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है एंड अल्टीमेटली ही और शी कैन डिटरमिन द फिजियोलॉजी ऑफ द जीन्स एंड प्रोटीन्स और मेटाबॉलिक पाथवेज या जो भी उसके अंदर यूटिलाइज होते हैं राइट. Okay, so if I say that you are given an environmental sample and you write the array of tests which you will be utilizing to isolate and purify the microorganism out of it and also to determine the identification and characterization target of it. So can you determine a workflow for yourself that what steps you will be doing one after the other? Are you capable of doing it?
You have been through a paper which Ma'am, is serial it was dilution. talking about the species description. Yes, serial dilution is very good when you have mentioned, because I have not included it. As I have said, that basic microbiological step, I am not including all those steps. When somewhere we have actually gone through it, so it is very good way that when you are getting the environmental method, instead of going for isolation right from the environmental method, it is very good that you go for the serial dilution of it, and then from the serial dilution from every, you can say, from every step of it, you try to isolate, and that's how you can get the ones which are in higher frequency being diluted till the highest dilution, and then you can also get which are in the least frequency over there, which there are chances that you can also isolate it. So it's good when you are including serial dilution. Anyone else, कि आप कोई मैडम एक व्हाट अपना अबाउट प्रोटोकॉल बना कल्चरिंग सकते एंड हैं कि सब? क्या स्टेप्स आप फॉलो करेंगे आइसोलेशन के लिए? Ma'am, culturing and subculturing, instead of like a serial dilution, if we go on culturing it and subculturing it to get colonies, ma'am. You say culturing and subculturing. Culturing is obviously the first thing, and when you get something cultured on a plate, तो जब आप उसको नेक्स्ट प्लेट के ऊपर ट्रांसफर करते हैं या नेक्स्ट लिक्विड कल्चर में ट्रांसफर करते हैं, तो आप उसको सब कल्चरिंग कहते हैं, ठीक है, फॉर प्योरिफिकेशन पर्पस। लेकिन ये देखें कि अगर मैंने आपको फर्ज करें एक गोश्त का टुकड़ा दिया है और मैं कहती हूँ कि इसमें से आप आइसोलेट करें, तो व्हाट यू विल बी डूइंग कि आप उसको क्या प्लेट के ऊपर रखेंगे और जहाँ जो उसकी सरफेस पे होंगे वो जो प्लेट पे ग्रो करेंगे वहां से उसको आप कहेंगे, या आप उसका एक्सट्रैक्ट निकालेंगे, क्या प्रोसीजर उसका होगा? मैम एक्सट्रैक्ट निकाल के मे बी उसको होमोजेनाइज करके तो उसको यस, आप उसको एक्चुअली होमोजेनाइज, अगर आपको कहते हैं कि जी यू हैव टू लुक फॉर द सरफेस कंटेमिनेंट्स, तो फिर तो आप एक्सट्रैक्ट नहीं निकालेंगे। सरफेस कंटेमिनेंट्स के लिए तो हो सकता है कि आप उसको डिप करें कुछ देर के लिए किसी भी सोल्यूशन में, इट कुड बी द वाटर, एंड देन आप उसको लेके वाटर का ड्रॉप अगर लगा लेते हैं तो आप उससे कर लेंगे, बट स्टिल यू हैव डिप्ड इट इनटू probably 10 ml of water, and then you have taken a drop out of it. But the best way is that you go for serial dilutions और उसके बाद आप उसको करेंगे. So we have determined that there could be different ways. आप उसके homogenized mixture को निकालते हैं, या आप उसके surface contaminants को, अगर आपको हम कहते हैं कि आपने वो देखने हैं जो इंटरनल हैं, उसके सरफेस कंटेमिनेंट्स को अवॉइड करना है, तो क्या करेंगे आप? सबसे पहले अपने सैंपल को सरफेस स्टरलाइज करेंगे हाइपोक्लोराइड से या एथेनॉल वगैरह से. आफ्टर सरफेस स्टरलाइजेशन यू विल बी गोइंग फॉर द extract making, and then you will be looking for which are not the surface contaminants but which are actually inside, right? तो वो दोनों methods हो सकते हैं. So ये तो basically हो गया कि आपने इसको process करना है, कैसे करना है. बट आई एम सेइंग कि आपने उसकी आइडेंटिफिकेशन करनी है, आइडेंटिफिकेशन एंड करेक्टराइजेशन करनी है, कंप्रीहेंसिव, ठीक है. तो एक पॉसिबल रूट आपका क्या होगा कि कौन कौन से स्टेप्स आप उसके अंदर करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल कल्चरिंग, as you have said, culturing through the direct contact of the material on the media, or through basic extract of the sample on the media, or through the serial dilution. ये तो पहला स्टेप आपका हो गया सबका मुख्तलिफ तरीकों से. उसके बाद बेसिकली मेरा सवाल समझ आ चुका है आप लोगों को? मैम शुगर टेस्ट वगैरह देखिए, ये तो आप बारी बारी शुगर टेस्ट वगैरह वगैरह की तरह वो तो कर रहे हैं हिट एंड ट्रायल के ऊपर. मैं आपको कह रही हूँ कि यू हैव टू डेवलप योर ओन फ्लो चार्ट फॉर अ comprehensive characterization of the microorganism out of that sample, right? तो स्टेप बाय स्टेप कैन यू डिटरमिन, बिकॉज अभी तक जो हमने फिनोटिपिक इसकी डिस्क्रिप्शन की डिस्कशन की है, और वी हैव डिस्कस्ड द आइडेंटिफिकेशन पेपर जो मैंने आपको एक IJSEM का पेपर, मीडिया के ऊपर ग्रोथ आ गई बैक्टीरिया की, देन सबसे पहले हम मॉर्फोलॉजी की तरफ जाएंगे, और अगर वहां से ये कंफर्म होता है कि ये बैक्टीरिया है, तो देन हम उसकी ग्राम स्टेनिंग की तरफ भी जा सकते हैं रिकॉग्नाइज करने के लिए, और कि ग्राम पॉजिटिव है या नेगेटिव है. उसके बाद मैडम हम डिफरेंट उसके ऊपर टेस्ट लगाना शुरू करेंगे. there are certain pre and post culturing ways. Pre-culturing में we have determined that how you are processing the sample, and then post-culturing is you are determining that from where you are initiating. So you have got something as a bacterial growth on the media which you have picked up on the basis of your
possible microorganism which you are having the possibility to get out of that sample. ठीक है, आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 17 different media available थे और आपका possible sample जो था उसकी basis पे आपने एक pick कर लिया. Like अगर आपको हमने ह्यूमन सैंपल दिया था और आप कहते हैं कि इसको ब्लड एगर पे प्रोसेस करते हैं, अगर हमने आपको एनवायरमेंटल सॉइल सैंपल दिया है तो आप उसको किसी और मीडिया पे करते हैं, अगर जनरली कोई फूड सैंपल दिया है तो आप उसको एलबी पे या न्यूट्रिएंट ब्रॉथ पे करते हैं. अगर मैंने आपको किसी एक्सट्रीम एनवायरनमेंट का सैंपल दिया है तो ज़्यादातर आपने सुना होगा एक्सट्रीमोफाइल्स के लिए कौन सा है मीडिया, अभी मेरे रीजन से निकल गया. एनीवेज आप सिलेक्ट कर लेते हैं मीडिया और उसके ऊपर आइसोलेशन करते हैं. ठीक है, आइसोलेशन करने के बाद बेसिक ट्रेट्स को आप देखते हैं विच इज कॉल्ड द कॉलोनी मॉर्फोलॉजी. ठीक है, आप मेथोडोलॉजी का फ्लो चार्ट आप अपना बना रहे हैं एंड दिस इज नॉट अ न्यू थिंग. This is actually that you are included some of the methods or some of the tests which are valid for that training. Yes, so post के अंदर post culturing के अंदर आपके पास staining आ सकती है that you go for gram staining. Basically आप उसकी gram positive और gram negative determination कर सकते हैं methodology में. And मैम कैटलिस्ट टेस्ट भी आ सकता है उसमें. हाँ, कॉलोनी मॉर्फोलॉजी की बात सबसे पहले तो जी आप उसकी अंडर द माइक्रोस्कोप मॉर्फोलॉजी को चेक करते हैं, नॉट ओनली विद द ग्राम स्टेनिंग बट आल्सो ऑफ द डायरेक्ट कल्चर. डायरेक्ट कल्चर की जब आप चेक करते हैं तो आपको ना सिर्फ उसकी शेप और वो बाकी इसके पैरामीटर्स नजर आते हैं बल्कि आपको उसकी मोटिलिटी का भी पता चलता है कि ये मोटाइल है या नॉन मोटाइल है. इसके बाद आप डिफरेंट बायोकेमिकल टेस्टिंग की तरफ आ जाते हैं. बायोकेमिकल टेस्टिंग के अंदर आपने कुछ ने कैटालेज का नाम लिया, कुछ ने ऑक्सीडेज का नाम लिया. अदरवाइज यू शुड रिमेंबर दैट वी हैव टॉक्ड अबाउट द फाइंडिंग ऑफ द ऑप्टिमल ग्रोथ पैरामीटर्स. ठीक है, प्योरीफाई करने के बाद आप क्या करते हैं कि आप उसके बायोकेमिकल टेस्टिंग से पहले उसके ऑप्टिमल ग्रोथ पैरामीटर्स निकालते हैं. तो ऑप्टिमल ग्रोथ पैरामीटर्स में क्या करते हैं कि रेंज ऑफ टेम्परेचर पे, रेंज ऑफ पीएच पे और रेंज ऑफ सॉल्ट कंसंट्रेशन पे बेसिकली इसको ग्रो किया जाता है. एंड देन यू फाइंड द एप्रोप्रिएट एंड इट कुड बी रेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एज वेल, अगर आपका वो एनारोबिक या फेस्टिडियस एनारोब है तो उसके केस में कि किस पैरामीटर्स के ऊपर ये अपनी ऑप्टिमल ग्रोथ देता है. तो फिर आप उसकी वो जब निकाल लेते हैं ऑप्टिमल पैरामीटर्स के जी ये 30 डिग्रीज के ऊपर गुड ग्रो करता है, ये जो है वो एरोबिक कल्चर है तो इसको नॉर्मल एरेशन के साथ आप ग्रो कर सकते हैं. इसके अलावा आप उसका निकाल लेते हैं कि जी सॉल्ट कंसंट्रेशन 1% से हाई नहीं जानी चाहिए इसके मीडिया के अंदर और पीएच जो है वो 6.8 है इसकी ऑप्टिमल. तो फिर आप ये पैरामीटर्स लिख लेते हैं कि दीज आर द ऑप्टिमल ग्रोथ पैरामीटर्स. तो फिर जो बाकी सारे बायोकेमिकल टेस्ट उसके होते हैं या उसकी जो केमिकल प्रोफाइलिंग होती है दैट इज परफॉर्म्ड एक्चुअली ऑन द ऑप्टिमल ग्रोथ पैरामीटर्स. ओके मैम जी मैम, ये ऑप्टिमल ग्रोथ पैरामीटर्स जो है बायोकेमिकल टेस्टिंग तो ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव हर स्पीशी के लिए डिफरेंट होती है, तो ये सब के लिए एक कांस्टेंट रेट कैसे आ सकता है? नहीं देखें, आपने ग्राम एक तो प्री टेस्टिंग है ना, आपने उसकी डिटर्मिनेशन के लिए कर ली, उसके अलावा सबके लिए एक नहीं आता. सो यू वर हैविंग अ टारगेट ऑर्गेनिज्म इन द एनवायरमेंटल सैंपल. ठीक है, एंड यू आर गोइंग फॉर द टारगेट, यू आर सस्पेक्टिंग समथिंग और आपने उसके लिए उसको टेस्ट किया. लेट्स से जब मैंने पीस ऑफ मीट से स्टार्ट लिया है, सो आई वाज गिविंग यू द पीस ऑफ मीट टू चेक फॉर पॉसिबल contamination of the microorganism in the piece of meat. That's why you are checking for it. So you are knowing, you know, your expected target could be salmonella or your expected target could be some, you know, bad strains of E. coli, something like that. So you have given the possible media to that. It could be the blood agar, that's fine. And now you have picked up the culture which is growing on it, and now you are checking for the optimal, after the gram staining you are checking for the optimal growth parameters. तो जो आपका प्योर कल्चर है, कोई एक सिंगल, अगर उसमें दो तरह के कल्चर निकले हैं तो दोनों कल्चर अपने अपने रेंज ऑफ टेम्परेचर, पीएच एंड सॉल्ट और कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर ग्रो करेंगे एरेशन के लिए. ठीक है, दोनों कल्चर, अगर आपके पास दो कल्चर आए हैं, लेट्स से आपके पास एक ही कल्चर आया उसमें से आइडियल कंडीशन में, क्योंकि आप एक ही को ढूंढ रहे थे, तो आप उसका रेंज चेक करेंगे. एंड जब उसकी ग्रोथ कर्व आप निकालेंगे, आप उसकी टाइम कोर्स स्टडी करते हैं. जब आपने पीएच पे लगाया है, मैंने आपको बताया था, इट इज नॉट सो दैट ऑल द पैरामीटर्स आर इंक्लूडेड इन द सिंगल फ्लास्क. एक्चुअली यू आर सेटिंग अप एक्सपेरिमेंट
like you are checking the range of pH and you are growing at the interval of 1 pH रेंज, तो आपने pH 4 से लेकर pH 9 तक अगर लगाया है तो आपकी कितनी फ्लास्क होंगी? 4, 5, 6, 7, 8, 9 और एक आपकी कंट्रोल फ्लास्क जिसमें कोई कल्चर नहीं है, तो टोटल आपकी 7 फ्लास्क्स हैं। जब आप इसकी टाइम कोर्स स्टडी करेंगे, लाइक आफ्टर एवरी 1 आवर आप उसकी एब्जॉर्बेंस लेना शुरू करेंगे कि उसमें ग्रोथ कितनी है, तो जो ग्रोथ आएगी उस एब्जॉर्बेंस को जो हर फ्लास्क में आ रही थी उसकी बेसिस पे आप ग्रोथ कर्व निकालेंगे। तो जो ग्रोथ कर्व होगी वो आपको शो करेगी कि कौन सी पीएच जो है वो ऑप्टिमल पीएच है इस कल्चर के लिए। ओके, इट इज नॉट सो that every culture is having the same, but actually it is a range and there are many cultures, so this is not very good a kind of profiling which can help you to identify the microorganism. But yes, it is very important to grow it at the optimal parameters to get a good growth of microorganism in its optimized conditions and then use it for other profiling. ठीक है, एक्चुअली कैटेगराइजेशन, जनरल कैटेगराइजेशन हो जाती है। मैंने अब आपको एनवायरमेंटल में से जैसे ह्यूमन या जो भी मीट का सैंपल दिया था, तो वी नो कि इसके लिए ऑप्टिमल जो हमारे पास ग्रोथ पैरामीटर्स हैं वो टूवर्ड्स 37 मिलने के चांसेस हैं। ऐसे ही है ना, अगर मैं आपको कोई प्लांट पैथोजन के लिए देती सैंपल, तो आई वाज नोइंग कि प्लांट पैथोजन जो है वो हमारे जनरली 28 to 30 डिग्री सी पे ऑप्टिमल मिल जाते हैं। तो मैं अपना रेंज ऑफ टेम्परेचर उसके इर्द गिर्द सेट करती उसको निकालने के लिए। अगर मैं आपको एक्सट्रीमोफाइल देती और किसी हॉट वाटर रिवोलेंट से आता, तो आप उसको 45, 50, 55 की टेम्परेचर रेंज पे भी लेके जाते ऑप्टिमल टेम्परेचर निकालने के लिए। डू यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? Yes, ma'am. I am getting. Yes, You know, ma'am. it is depending upon you. मैंने यहाँ ये नहीं कहा कि आप किस टेम्परेचर से किस टेम्परेचर, प्लीज वन बाय वन, पहले मेरी एक बात आपको खत्म कर दूं। सी, मैंने आपको ये नहीं कहा था कि आप किस टेम्परेचर से किस टेम्परेचर तक जाएंगे। आई वाज सेइंग दैट व्हाट विल बी योर कोर्स ऑफ स्टडी, सो यू कैन से आई विल बी गोइंग फॉर द फाइंडिंग ऑफ द ऑप्टिमल टेम्परेचर रेंज। अब टेम्परेचर रेंज कौन सी होगी ये रिसर्चर डिसाइड करेगा। अगर उसको एक्सट्रीमोफाइल सैंपल है तो उसको पता होगा कि मैंने टेम्परेचर रेंज कहाँ से शुरू करनी है और कहाँ तक जाना है। पता चले सैंपल एक्सट्रीमोफाइल को देखने के लिए था और टेम्परेचर रेंज जो है वो 20 से लेकर 35 तक की चेक कर ली गई है, इट कांट बी, ठीक है। और अगर एक्सट्रीमोफाइल के लिए थे तो ये भी नहीं है कि आप 0 से लेकर 60 तक जाते। सो यू हैव टू सेट अप योर एक्सपेरिमेंट। इसका कहीं पे कोई आपको वो नहीं मिल सकता कि अच्छा ये फलानी वेबसाइट में डालना तो वो बता देंगे वहां से निकाल के कि कौन से टेम्परेचर के ऊपर इस सैंपल को प्रोसेस कर लो। थ्रू योर नॉलेज एंड थ्रू योर अंडरस्टैंडिंग of the sample and culture, you have to determine these things. ठीक है? So the main thing is when we are learning the basic principle of omics, basically, so it is make use of the knowledge which is already available to us, because we are trying to use all the bacteriological knowledge available to us to learn about more microorganisms present in the ecosystem. ये omics जो है वो actually है क्या? You are trying to learn more in the ecosystem, ठीक है? ये जो है अब इन द फील्ड ऑफ कल्चर आप इसको स्टडी करें, जैसे जीनोमिक्स, इन द फील्ड ऑफ जीनोम यू आर स्टडिंग, प्रोटियोमिक्स इन द फील्ड ऑफ प्रोटीन्स आप स्टडी कर रहे होते हैं उसको, बायोलॉजिकल सैंपल को बायोलॉजिकल साइंसेस में। ट्रांसक्रिप्टोमिक्स या मेटाबोलोमिक्स इन द फील्ड ऑफ मेटाबोलाइट्स उनके कर रहे हैं। ट्रांसक्रिप्टोमिक्स उनके ट्रांसक्रिप्ट्स जो आरएनए हैं उसमें आप उसको कर रहे हैं। सो कल्चरोमिक्स क्या है? कल्चरोमिक्स क्या है? मैम It डिफरेंट is a कल्चर्स को स्टडी discipline करना। in you are studying that microorganism or analyzing the microorganism in the field of culturing, ठीक है? और कल्चरिंग इज एक्चुअली डिपेंडिंग अपॉन इट्स जेनेटिक लैंडस्केप। उसकी जो कल्चरिंग है वो उसके जेनेटिक लैंडस्केप पे ही डिटरमिन होती है, बट यू आर नॉट कमिंग थ्रू द वे ऑफ जेनेटिक्स। आप पहले उसका जीनोम स्टडी नहीं कर रहे, आप उसको एक comprehensive profile दे रहे हैं, and you are letting it grow in that comprehensive profile, but you are the one who is determining the comprehensive profile in which you will be growing your microorganism, ठीक है?
तो ये नहीं है कि एक सेट हम आपको दे देते हैं कि इसी पीएच पे करना है, इसी जब अभी तो आपने सिर्फ, मैं 1 मिनट आपके क्वेश्चंस लेती हूँ, अभी आपने सिर्फ एक IGSEM का पेपर पढ़ा है और वो एक typical type of environment से था. What today we will be doing that I'm going to open another paper which is from another type of environment, and we see the researchers have how determined, actually the tests are same. आइसोलेशन प्योरिफिकेशन के बाद यही pH टेम्परेचर की रेंज होती है, लेकिन वो पहले पेपर में रेंज किस तरह डिटरमिन की गई थी, बिकॉज दे वर लुकिंग फॉर द एक्सट्रीमोफाइल, और दूसरे में वो सॉइल सैंपल को चेक कर रहे हैं या सीवेज वाटर सैंपल को चेक कर रहे हैं, तो उन्होंने उसकी रेंज किस तरह से फिक्स की है वो कोई नहीं बताता, वो आप खुद डिटरमिन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ योर नॉलेज, इंफॉर्मेशन ऑलरेडी उस ओमिक्स के लिए, उस कल्चर की ओमिक्स के लिए आपने इंफॉर्मेशन इकट्ठी की हुई होती है और उसको आप यूज़ करते हैं प्रोफाइल डिटरमिन करने के लिए. जी अभी मैं देख रही थी मुजाहिदा का पहले हैंड रेज था. मुजाहिदा आप क्या पूछना चाह रही थी? मैम अगर हम एक स्पीशी की भी बात करें तो हम उसको एरोबिक में भी कल्चर करें, एनारोबिक में भी कल्चर करें, तो मैम उनका ग्रोथ कर्व सेम कैसे आ सकता है? लाइक अगर एनारोबिक उसके लिए ज़्यादा प्रेफरेबल है तो वहाँ उसका ग्रोथ कर्व ज़्यादा आएगा, तो फिर ये कांस्टेंट नहीं आ सकता. मुजाहिदा उसको आप एरोबिक और एनारोबिक दोनों पे करें. लेट्स सपोज आई एम लुकिंग फॉर काइंड ऑफ, मुझे 1 मिनट इसका नाम माइक्रोऑर्गेनिज्म को फेस्टिडियस का किसी एक का याद कर लेने दो. कहाँ गया है? तहसीन के फोल्डर में भी होगा. वी हैव रिसेंटली वर्कड ऑन इट. या सो like I am going into the oral cavity and to determine the microorganisms in the oral cavity, and which can come from the oral cavity of the one patient to the other patient through the use of the dental equipments, right? And out of those, I mean, the previous knowledge tells me that there is a range of microorganisms which can come from the buccal cavity on the dental equipment. And if I use after the basic cleaning the dental equipment after one patient to the other, some will be cleaned off, in which E. coli probably is cleaned off, but there are some other which will not be cleaned up from the dental equipment, and if I take it to the next patient it will be picked up over there, क्योंकि आपने थॉरो स्टरलाइजेशन दरमियान में नहीं करते. ठीक है. एक कल्चर होता है स्टैफ म्यूटेंट्स का. वी नो, यानी मेरा टारगेट जो था वो इकोलाई में नहीं था. आई नो कि जब मैं बकल कैविटी में जा रही हूँ तो इकोलाई भी होगा, लेकिन मुझे पता है कि डेंटल इक्विपमेंट को बेसिकली जब मैं एथेनॉल स्वैब से क्लीनिंग करके दूसरे पे यूज़ कर रही हूँ, जो बेसिक प्रैक्टिस है, तो उसमें इकोलाई तो क्लीन अप हो रहा था, लेकिन स्टैफ म्यूटेंट्स जो है वो नहीं हो रहा. और स्टैफ म्यूटेंट्स की प्रोबेबिलिटी है कि वो बकल कैविटी में होता है. बट आई एम ऑल्सो नोइंग द टारगेट टू विच आई एम लुकिंग अप. ये एक नोन रेंज ऑफ टारगेट्स की बात हो रही है. नोन रेंज ऑफ टारगेट्स में मुझे पता है कि स्टैफ म्यूटेंट्स जो है वो एक फेस्टिडियस एनारोब है. मीन्स इट इज ग्रोइंग इन द एरोबिक कंडीशंस एज वेल एज इन द एनएरोबिक कंडीशंस. सो बेसिकली इफ योर कल्चर इज एरोबिक, तो जब आप उसको एरोबिक कंडीशन में ग्रो करेंगे तो वो ग्रो करेगा, एनारोबिक में वो ग्रो नहीं करेगा. राइट. इफ योर कल्चर इज एनारोबिक, it will be growing at the 0% oxygen and 100% carbon dioxide. वो anaerobic condition में grow करेगा. जब आपके fastidious anaerobes होते हैं वो आपकी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों की कंसंट्रेशंस पे ग्रो करते हैं. ठीक है. तो उनकी ऑप्टिमल जो होती है फिर इस तरह से होती है कि कुछ अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड उनको चाहिए होती है, बट जनरली फेस्टिडियस एनारोब्स को आप बगैर कार्बन डाइऑक्साइड के नॉर्मल फ्लास्क में जिसमें ऑक्सीजन होती है आप उसमें भी ग्रो कर लेते हैं, लेकिन उसकी बायोकेमिकल प्रोफाइल आप उस फ्लास्क से रीड आउट नहीं कर सकते. बायोकेमिकल प्रोफाइल को रीड करने के लिए, बिकॉज यू नो दैट एक्सप्रेशन विल बी डिफरेंट in the presence of carbon dioxide and in the absence of carbon dioxide. So when you are knowing that this is basically a type of anaerobe, then for studying its biochemical expression, you should go for a growth done in the carbon dioxide chamber. Is it clear to all of you now with my example? Yes. ठीक है. क्योंकि basically we have understood that expression profile is extremely dependent upon the environment which is optimal for it. ठीक है. अगर आप वहाँ पे एक प्रेशर exert कर देते हैं
मैंने क्या करना है, आई हैव टू गो फॉर द आइडेंटिफिकेशन एंड कैरेक्टराइजेशन, एंड दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ द फिनोटाइप, सारे एक्सप्रेशन की बेस पे है। बट जनरली मुझे पता था कि मेरा टारगेट इकोलाई नहीं था विच इज़ एरोबिक, मेरा टारगेट एक फेस्टिडियस एनारोब था। वो ऑक्सीजन की कंडीशन में भी ग्रो कर रहा है, लेकिन मुझे ये याद रखना चाहिए कि उस कंडीशन में जब मैं दूंगी तो उसकी प्रोफाइल एक्सट्रीमली डिफरेंट आएगी। वो एक प्रोफाइल उसकी ऑप्टिमल प्रोफाइल नहीं है। उसकी ऑप्टिमल प्रोफाइल वो होगी जब मैं उसको कार्बन डाइऑक्साइड चैम्बर में ग्रो करके लाऊंगी, तो उसके expressions वो होंगे which should be the expression used for the characterization, not the expressions which I have taken in the presence of oxygen, right? And step by step you tend to increase on it. So it is the selection of the media when you are going for the unknown, or it could be the development of the chambers, or it is the downstream processing of the sample when you are going for the unknown. It is not only we are growing the known cultures, but we are also improving the amount of unknown cultures and bringing them into the culture. Culturomics is not only culturing the things which were present earlier to us, it is also extending the known diversity of the microorganism, and we are applying the range on it. So you should remember genomics में क्या था, आपके पास एक प्योर कल्चर आ जाता है, आप उसका डीएनए निकालते हैं और डीएनए को सीक्वेंस कर लेते हैं, and then you go for analysis. And what you are doing, there is a plethora of tools available. There is a bulk of database available, and you have to use the tools and you have to use the databases for the analysis over there. And what you have to do here in culturomics में, before going for the tool or the database, you actually have to develop the profiles in which you will be growing the cultures, a range of profiles. And out of the range of profiles, you have to determine the results, and then you have to analyze the results. ठीक है? बेसिकली ये एक प्योर कल्चर और एक उसके डीएनए की बात नहीं हो रही, एक प्योर कल्चर और उसके एक्सप्रेशन इन सेवरल कंडीशंस की बात हो रही है. Is it clear? Yes, ma'am. We'll be not leaving it so quickly, because ultimately what we are going to do, that we are picking up a couple of papers which have used the culturomics approach, particularly culturomics, the way they have determined that culturomics should be a branch in biological sciences for the study of the microorganisms. But before going into that, again, we are going into the IGSEM paper, another paper which is showing us the flow chart of studying a microorganism. ठीक है, जो मैंने आपको आज क्वेश्चन भी पुट किया था, और इसमें बेसिकली आपकी थोड़ी इनपुट रही है, बिकॉज अभी उस तरह से अंडरस्टैंडिंग नहीं आई. जनरली ये पेपर, ये जो चैप्टर था, ये आपको री एम्फेसाइज कर रहा है कि डिस्पाइट द फैक्ट दैट वी आर हैविंग the genome information and the tools and the databases, but still we need to focus on the culture, and the branch which is emerging to study the culture is known as the culturomics, right? So this is for the characterization of the key elements of the strains, key elements of the strain, not the key strain or the type strain. Key elements हम सारे नहीं कह सकते, but maximum which can help in prokaryotic systematics, right? So पास्ट 100 years में methodologies develop हुई हैं, और वही procedures हैं जो microbiology के हैं, but you are improving the procedures and you are applying range of tests, and then you are analyzing the results of range of tests. So this is called culturomics. Culturomics is not only applying a single test and determining the result, but it is application of range of tests and analyzing the result for as comprehensive as possible profiling to characterize the microorganism. And these are the set of tests which can help us actually in the hierarchical order as we go for phylogenetics with the 16S rDNA or any other method, that we can use this culture dependent methods for the identification and characterization of the microorganisms, right? So framework of polyphasic approach ही चल रहा है. Framework of polyphasic approach is telling us it will not only a DNA test, but it will be a range of culture based tests, and then the results will be all compiled up to get the information on the characterization of the microorganism. And that's why for the range of the tests, we are going to another paper. I have to open the paper and then share it with you. I have saved it earlier.
for you. उसमें बेसिकली 16S यूज नहीं हुई भी है, बल्कि पेट डिग्रेडेशन, अभी मैंने आपको पहले पेट डिग्रेडेशन का दिया था, पेट डिग्रेडेशन का पेपर दिया था पहले। यस मैम। अच्छा ठहरो, Arctic soil taxonomic. एक तो आर्कटिक सॉइल वाला मिल गया है, एक मैं खोलूंगी जो पाकिस्तानी उसका है IJSCM से, और फिर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। एंड व्हाट यू हैव टू डू दैट बिफोर स्टेपिंग इनटू द नेक्स्ट क्लास, जिन्होंने तो पहला पेपर अच्छे से पढ़ लिया था और उनको लगता है कि उनको फ्लो चार्ट ऑफ द टेक्निक्स क्लियर है, वो तो उनको आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जनरली अपने अंडरस्टैंडिंग को इंक्रीज करने के लिए दैट व्हाट कुड बी द पॉसिबल स्टेप्स डाउन फॉर, अभी मैं आपको बुलाऊंगी, what could be the possible steps downstream in the isolation and characterization of microorganisms in a polyphasic approach, where we are combining not only the 16S rDNA or different DNA based methods or results, but we are combining the results and methods of the culture based tests. So we are just determining it. जिनको तो clear है पहले से, उनको तो मज़ीद कुछ उसमें देखने की ज़रूरत नहीं है, जिनको नहीं है वो एक दो पेपर को ज़रूर देख लें। इडियोनेला वाला मैंने आपके साथ किया था, जीनोम बेस्ड एंड JSCM पे शेयर सर्च। ओके आई गॉट वन पेपर, क्योंकि हमें बेसिकली अपनी जो वो है, इज इट ओपन एक्सेस, नो इट इज लॉक्ड। एक था चोलिस्तान डेजर्ट सॉइल से आइसोलेशन का पेपर था, बट इट इज अ लॉक्ड वन। टारगेट जीन इन्वॉल्व इन नाइट्रेट एसिमिलेशन एंड स्ट्रेप्टोमाइसिस, ये है ओपन, पुराना है। Equation phylogenetic lineage including probiotics, डेजर्ट सॉइल का पेपर है 2017 का। रूट नोड्यूल जो करंट कॉन्सेप्ट, चले मैं यही खोल लेती हूँ जो डेजर्ट सॉइल वाला है। थर्मोफिल एसिड हॉट स्प्रिंग, ये खोल लेते हैं। Okay. So, screen share हो रही है आपसे? Again, Yes, ma'am. we are Yes, not ma'am. only on Yes, the ma'am. taxonomic description, but we are understanding the pipeline in the polyphasic approach, which is not only including the genotypic test, but it is also including the phenotype based tests, which are the basis of the culturomics, the culture based identification system which you are applying. Okay, so first of all, when we are given a sample from any
kind of environment. It is depending upon our interest from which we have picked up the sample, and it is depending upon the rationale for which we have picked up the sample. Like we have picked up the sample to look for the diversity in that sample, or we have picked up the sample to see for a certain target microorganism over there, and then we are determining the range of tests which we are going to apply. So after acquiring the sample, we are using the sample for isolation purpose. Remember, it is not an approach where we are going to see the genome based study to see what possibly is present in the sample. We are going for culturing of the microorganism and then looking into, after culturing, that what are the features of that microorganism. And after culturing, it could be we have got many microorganisms differentially, and one by one, we will be applying all the tests on all the differential microorganism. Or we have got differential microorganism, but because of the basic features, we have got interest in only one of those, and we are going for all the tests for only one of that. Basically, जब मैं आपको इस तरह का कोई पेपर ला के देती हूँ जिसमें नॉवल स्पीशीज डिस्क्रिमिनेशन का पेपर होता है, तो उसमें क्या होता है कि आउट ऑफ द सैंपल उनका एक स्पेसिफिक इंटरेस्ट का सैंपल में से ऑर्गेनिज्म आता है जिसको वो फर्दर स्टडी कर लेते हैं. इट कुड बी आपको इसी में टेक्सोनोमिक डिस्क्रिप्शन में ऐसा मिलेगा कि एक ही सैंपल में से उनको 4 या 5 या 10 ऐसे मिलते हैं जिनको वो सारे के सारे टेस्ट उन पे लगाते हैं सेपरेटली. डिटरमिन जब आप कर रहे हैं तो याद रखें कि जितने भी टेस्ट हैं वो हर एक के ऊपर सेपरेटली लग रहे हैं, बिकॉज दिस इज ऑल द वर्किंग ऑन द सिंगल प्योर कल्चर. यहाँ पे कोई मिक्स कल्चर की या कोई जीनोटिपिक डायरेक्ट डीएनए के ऊपर टेस्टिंग की बात नहीं हो रही है. ठीक है. सो यू प्रोसेस द सैंपल फॉर आइसोलेशन ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म. सो बेसिकली प्रोसेसिंग के अंदर कुछ ने कहा कि हम उसको डायरेक्ट लगाएंगे, कुछ ने कहा हम उसको एक्सट्रैक्ट निकालेंगे और वो यूज़ करेंगे, कुछ ने कहा कि हम उसको सीरियल डाइल्यूशन के साथ यूज़ करेंगे. जनरली द बेस्ट method determined in the microbiology and recommended in the microbiology is that we go for serial dilutions and then we try to isolate the target out of that, right? So we have picked up any kind of media. जो मैंने कहा था कि जब मेरा एक soil sample है या meat sample है या कोई भी sample है, so on that sample what kind of media I have to choose to start with will be on my general knowledge कि मेरा sample कहाँ से आया और उसकी basis के ऊपर जो available इंफॉर्मेशन है उसमें से मैं अपना मीडिया को सिलेक्ट करूंगी थ्रू द सिलेक्शन फ्रॉम लिटरेचर. ठीक है. एंड हियर दे हैव सिलेक्टेड द मेरीन एगर फॉर आइसोलेशन. लाइक एक्सट्रीमोफाइल्स के लिए R2A एगर जनरली हमारी लैब्स में होता है. R2A एगर एक कंपोजिशन आती है प्री मिक्स्ड कंपनी से, उसको R2A एगर के नाम से नोन है, तो हम R2A एगर को यूज़ करते हैं. दे हैव यूज्ड फ्रॉम अ सर्टेन कंपनी मेरीन एगर ऑन द बेसिस ऑफ सिलेक्शन विच दे हैव मेड फॉर देयर पर्टिकुलर सैम्पल टाइप. उनका एक किसी आइलैंड की सॉइल थी और उसके लिए उन्होंने आइसोलेशन करनी थी, तो इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर R2A एगर और going for nutrient agar or going for blood agar, they have picked up the marine agar, right? So this selection is on the basis of the sample. So you go for a selective media for isolation. It could be a general media when you do not know anything. अगर जैसे हमने बात की थी कि हमारे पास मार्स से कोई सैंपल आ जाता है और हमने जाना है, तो जनरली हम जनरल मीडिया से शुरू कर सकते हैं उसको, या डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस विच वी हैव डन थ्रू द एनालिसिस ऑफ द सैंपल कि जो बेसिक आपने उसका कंपोजिशन एनालिसिस किया है सैंपल का, फिजिकल एनालिसिस, उसकी बेसिस पे आप उसकी कंपैरिजन की बेस पे आप चूज कर सकते हैं कि किस पे आपने करना है, राइट? सो after the dilution or extraction you go for culturing on the plate. This is called plating of the sample, जिसको आप streaking से भी कर सकते हैं, जिसको आप spreading से भी कर सकते हैं. अगेन ये बेसिक माइक्रोबायोलॉजिकल टेक्निक्स हैं कि आपने कैसे प्लेटिंग करनी है उसकी. ठीक है. प्लेटिंग के बाद आपके पास एक कल्चर अपीयर हो जाता है. बेसिकली एक कल्चर विद स्पेसिफिक फीचर्स जिसको आप कह सकते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ द फीचर्स यू कैन पिक अप फॉर फर्दर identification, like it was round colonies and medium size of colony and yellow color of colony. That's how you have seen that ये colony morphology में एक pure colony लग रही है. So you pick that colony and you subculture it for purification. So purification is the second step after isolation. Purification comes through
सक्सेसिव सब कल्चरिंग, एक के बाद एक आप प्लेट के ऊपर करते हैं और दरमियान में कहीं पे भी फ्रिज या फ्रीजर में कल्चर नहीं जा रहा, बल्कि वो सब कल्चरिंग होती है until you have got the final and pure culture, and you check the purity of the final culture under the microscope as well. You do not go for the colony morphology only, but you check it under the microscope, and after going for the microscopic identification, you can grow the culture in the liquid form, and then you can make the glycerol stocks for मेंटेनेंस ऑफ द कल्चर. आप उसको लाइफोलाइजेशन कर सकते हैं, लिक्विड नाइट्रोजन में फ्रीज ड्राइंग कर सकते हैं. उसके अलावा आप उसको ग्लिसरॉल सस्पेंशंस बनाते हैं और उसके बाद -80 पे आपने फ्रीज कर लिया. ये बेसिकली क्या था, इसमें क्या अचीव हुआ है, सिर्फ 2 स्टेप्स अचीव हुए हैं, आइसोलेशन और प्योरिफिकेशन. और प्योरिफिकेशन के बाद उसको साइड पे आपने जाके एज अ प्योर कल्चर प्रिजर्व कर लिया, प्योर कल्चर प्रिजर्व कर लिया है, राइट. स्टोरिंग या प्रिजर्वेशन आप उसको कहेंगे. दीज आर जस्ट 2 बेसिक स्टेप, आइसोलेशन एंड प्योरिफिकेशन. when you want to move on for identification and characterization, no matter of a microorganism, no matter it is on the basis of the phenotype, no matter it is basis of the genotype, the prereq is of a culture. Prereq is that you should have a purified culture. ठीक है, चाहे आपने जीनोटिपिक पे जाना था, चाहे आपने फिनोटिपिक पे जाना था, प्योर कल्चर आपको चाहिए ही चाहिए था. So we have determined the flow over here. The next in the flow is that we go for the DNA based testing and also the profiling of the culture for its optimal growth parameters, right? So they have written here that they have gone for the DNA thing, but actually I have to see if they have done the profiling down somewhere or they have not performed in this. Let's see. They have described it way down, but generally what happens that before going into this DNA thing, actually यहाँ पे flow के अंदर आपका क्या होगा कि after that you go for the optimal parameters profiling. It is actually range of temperature, pH, carbon dioxide concentration or aeration, or it is the salt range. तो आप ये different range पे करते हैं optimal growth parameters, basic growth parameters निकालने के लिए. ठीक है, basic growth parameters जब आप इसके डिटरमिन कर लेते हैं, तो जब डीएनए के लिए आपने जाना है वो ऑन द बेसिक ग्रोथ पैरामीटर्स में जो ऑप्टिमल ग्रोथ पैरामीटर्स हैं, द ऑप्टिमल टेम्परेचर, ऑप्टिमल पीएच, ऑप्टिमल सॉल्ट कंसंट्रेशन एंड ऑप्टिमल एरेशन, इसके ऊपर आप उसको ग्रो करते हैं उसका डीएनए आइसोलेट करने के लिए. दिस इज एक्चुअली ऑप्टिमल ग्रोथ ऑफ द कल्चर which is used for the DNA isolation, right? In the flow you go for the optimization of the growth parameters. ठीक है, सेल मॉर्फोलॉजी एग्जामिन करने के बाद माइक्रोस्कोपी में आप जो है वो उसकी सेल्स आर एग्जामिन फॉर स्टेनिंग, ग्राम स्टेनिंग किट से, और इसकी असेसमेंट आप डिफरेंट बायोकेमिकल टेस्ट पे भी करते हैं, मोटिलिटी ऑब्जर्व करते हैं एंड उसकी ग्रोथ पैरामीटर्स को आप डिटरमिन करते हैं, राइट. आइसोलेशन, प्योरिफिकेशन के बाद साइड लाइन आपने उसको प्रिजर्व कर दिया. प्रिजर्व करने के बाद आप उसके ऑप्टिमल ग्रोथ पैरामीटर्स को स्टडी करते हैं. जो आपकी सेल मॉर्फोलॉजी थी वो माइक्रोस्कोपी वगैरह को हमने बेसिकली प्योरिफिकेशन जब की थी तो वहीं पे हमने बात कर ली थी कि आप उसकी माइक्रोस्कोपी वगैरह भी कर लेते हैं. आफ्टर द ग्रोथ पैरामीटर टेस्टिंग यू गो फॉर द नेक्स्ट स्टेप इज यू गो फॉर DNA extraction. At the optimal growth parameters you grow the culture and you isolate the DNA, and on the DNA you apply the NGS to determine the whole sequence, or you apply the 16S primers to determine the amplification of the 16S rDNA gene. You blast the gene into the databases, and after the blast you get the results, and this is the pipeline of that procedure where you blast the results and then you use the tools to develop the phylogenetic tree, and out of that you apply a statistical tool for development of the phylogenetic tree, and that phylogenetic tree tells you about the identification on the basis of this particular test, right? So you can go for the partial sequencing, or you want to complete the 16S rDNA and you go for the
primer walking procedure, or you go for NGS for the whole genome thing of that DNA. And then along with that it could be कि एक तरफ आप उसका DNA based testing करें, दूसरी तरफ optimal growth parameters पे grow करने के बाद आप क्या करेंगे, आप उसमें से जो DNA निकला था उसी का आप GC content कर लेंगे और उसके बाद आप उसके different biochemical profile testing करेंगे. That biochemical profile testing could be that you are going for different carbon range utilization tests, you are going for several other tests using the different kits available. इसमें आपके पास एक जो बहुत very well known kit है, that is actually API 20E. ये जो है ये non-enteric की है 20E. API 20E enteric बैक्टीरिया के लिए यूज होती है, इसकी स्ट्रिप्स होती हैं. सो यू आर हैविंग अ स्ट्रिप ऑफ 20 tests available in which you can apply your culture and get the results of 20 biochemical tests in a single go, right? But still we are having other systems available which can give you on a 96 well plate of several biochemical tests on a single 96 well plate. ठीक है, here you go for the biochemical tests. It is basically a range of carbon utilization, a range of different chemical tests present in that. And then in the profile you can go for the further chemical testing. In further chemical testing it could be that you are going for fatty acid profiling and you are going for अभी मैंने आपको एक और जो सिस्टम है उसके साथ चूँकि इंट्रोड्यूस नहीं कराया और मेरा ख्याल है इस पेपर में भी उसको यूज़ नहीं किया गया, ribosomal RNA के सिस्टम को, so we are not including it, but basically we go for the fatty acid profiling in the chemical testing and then we are compiling all those results for the identification of the microorganism. So this could be ये जो सारे के सारे ये H2S प्रोडक्शन, यूरिएज, ट्रिप्टोफैन, ये सारे API 20 में शामिल थे. ठीक है, ये सारे के सारे केमिकल टेस्ट हैं जो आपको एक ही किट के अंदर मिल जाते हैं और उसको आप कर लेते हैं, या आप बेसिकली टेस्ट ट्यूब में अलग-अलग भी कर सकते हैं. प्रोसीजर्स आपको इसके पता होते हैं. और दीज आर द कार्बन सोर्स यूटिलाइजेशन जिसको मैंने सिंगल वर्ड में आपके साथ डिस्कस कर दिया है. ठीक है, सो यू यूज दीज results and compilation of these results helps you in identifying a microorganism with the use of a polyphasic approach. Can you please recall the steps which we have included in the polyphasic approach up till now? Hello. मैम उसे आइसोलेट करेंगे और प्यूरिफाई करेंगे and then उसके basic parameters check करेंगे. Sample processing for isolation, yes. Then Purification. प्यूरिफिकेशन के बाद साइट पे जाके आप उसको प्रिजर्व कर देते हैं. ठीक है, भी करेंगे मैम. हाँ, प्रिजर्व कर देते हैं. देन optimal growth curve finding. Yes. हम जो Yes, DNA है देखो वो जब आपकी आइसोलेट optimal करेंगे. growth curve finding हो जाती है, optimal growth curve finding हो जाती है, तो you can choose two ways. यानी simultaneously you can go for the DNA based testing and you can go for the biochemical and chemical testing. सिंगल वे प्रोसेस है ना, वहां तक जाना. आप साइमल्टेनियसली भी कर सकते हैं, यहाँ पे आपको वन आफ्टर दी अदर करने की जरूरत नहीं है. जब तक आपने ऑप्टिमल ग्रोथ पैरामीटर फाइंडिंग की थी वो आपका वन वे प्रोसेस था. ठीक है, एंड व्हेन यू हैव अचीव्ड टू द ऑप्टिमल ग्रोथ पैरामीटर्स, देयर on the basis of the optimal growth parameters you can grow the culture, and one side you can take the culture for DNA based testing which is including the 16S GC content or the whole genome thing, and दूसरी तरफ आप उसकी बायोकेमिकल एंड केमिकल प्रोफाइलिंग भी कर सकते हैं उसके ऊपर जाके. ठीक है, एंड अल्टीमेटली यू आर कंपाइलिंग ऑल द रिजल्ट्स फॉर द आइडेंटिफिकेशन एंड कैरेक्टराइजेशन ऑफ द माइक्रोऑर्गेनिज्म, एंड दिस इज कॉल्ड एज द पॉलीफेजिक अप्रोच. राइट, अब उसमें आपने API यूज की है या कोई ABC किसी भी कंपनी का कोई प्रोसीजर यूज किया है, वो वहाँ पे एक अलहदा बात है कि आपने स्टेप बाय स्टेप अपनी ट्यूब्स के अंदर परफॉर्म किया है कोरी एजेंट से, या आपने कोई किट्स यूज कर ली हैं बायोकेमिकल और केमिकल प्रोफाइलिंग के लिए. आपने जो है वो राइबो प्रिंटिंग यूज करते हैं हम राइबोसोम्स के लिए, लेकिन राइबो प्रिंटिंग को मैंने अभी आपके साथ इंक्लूड नहीं किया है. इसके अलावा वहाँ जो आपकी प्रोफाइल चल रही होती है उसमें आप माल्टीटॉफ को यूज करते हैं, उसकी सरफेस प्रोटीन्स के लिए मैंने उसको अभी इंक्लूड नहीं किया, बिकॉज राइबो प्रिंटिंग और
माल्डीटॉफ को हम इन डिटेल भी स्टडी करेंगे फर्दर आगे जाके, तो अभी तक मैंने इन दोनों पे आपसे बात नहीं की है। अदरवाइज उस प्रोसीजर में जहाँ पे हम देख रहे थे कि आपकी बायोकेमिकल प्रोफाइलिंग हो रही थी और जहाँ पे हमारी केमिकल प्रोफाइलिंग फैटी एसिड एनालिसिस हो रहा था, वहाँ पे हम जो आजकल की पाइपलाइन है वहाँ पे राइबो प्रिंटिंग भी यूज़ होती है और वहाँ पे इसके अलावा माल्डीटॉफ भी यूज़ होता है एज अ सिस्टम। और जो बायोकेमिकल प्रोफाइलिंग है, फर्दर हम बायोकेमिकल प्रोफाइलिंग की डिटेल में जाएंगे। बेसिकली अभी भी ये पेपर जो ओपन हुआ ये 2017 वाला था। अदरवाइज जो है वो हमारे पास डिफरेंट प्रोसीजर्स अवेलेबल हैं। इन द बायोकेमिकल प्रोफाइलिंग आई विल नॉट टेकिंग यू टू द बेसिक API kits, I will be taking you to the biolog microbial identification systems, right? जो कि मैंने आपको पहले भी नाम से इंट्रोड्यूस कराया था, and now we are going in the details of this biochemical identification system. On any kind of system we can get in the information on it. The system of choice for me right now is the biological microbial identification system with the trade name of Biolog, and this Biolog based microbial identification system is also present over here in my lab. So we are also using, I mean, it is a huge thing we have purchased and we are using the database, and I'll be giving you the real-time insight into the Biolog system, that how much we are having the capacity to use the developed procedures for identification of microorganism, and that's how all the results developed through the procedures which are already optimal, we can compile and we can get the identification done through the comparative procedures. Is it clear? Yes, ma'am. So next class I'll be taking you, your way is that you should be capable of downstream processing a sample, कि इसके कौन कौन से steps आपको करने हैं, ठीक है। अब कोई मुझे बता दे कि सैंपल मिलते ही सबसे पहले उसकी DNA आइसोलेशन करेंगे, तो एब्सोल्युटली इट इज़ रॉन्ग। सैंपल मिलते ही आप उसकी DNA आइसोलेशन नहीं करेंगे, बिकॉज यू हैव बीन आस्क्ड टू isolate and purify the culture and then identify the culture and characterize the culture out of that, right? So you should know that what procedures you will be performing in the downstream processing. मैंने उसका प्रोटोकॉल आपसे नहीं सुनना कि DNA आइसोलेशन का तरीका बता दें या उसका क्या होता है, लेकिन पाइपलाइन आपको क्लियर होनी चाहिए कि पाइपलाइन आपकी किस तरह से चलती है, ठीक है। मैम ये यूनिवर्सिटी मंडे से ओपन होगी मैम? तलहा अभी मुझे लगता है कि नहीं होगी, क्योंकि बेसिकली एवरीथिंग विल बी डिटरमिन्ड एट NCOC और जो भी हमें गाइडलाइन आएगी। जनरली जो हमारे फर्स्ट सेशनल जो था, इस वक्त सिचुएशन तो कोई इतनी अच्छी नहीं है हमारे कैंपस में। हमारे बायो साइंसेस में बहुत सारे टीचर्स जो हैं वो कोविड पॉजिटिव हो गए थे पिछले वीक में, ठीक है। तो इसलिए मैं ये नहीं कह सकती कि क्या होगा। तो उसमें अगर यूनिवर्सिटी ओपन भी होती है तो मे बी वो डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट सिचुएशन के ऊपर भी होगा। बेसिकली जो हमारे फर्स्ट सेशनल के एग्ज़ाम्स हो रहे थे वो हमने पोस्टपोन किए थे, हम उन्हें ऑन कैंपस करना था जो HEC की पॉलिसी थी, बट प्रीवियसली इट हैज़ बिन डिटरमिन्ड लास्ट डे एंड उसके ऊपर गाइडलाइन आ गई है। जो फर्स्ट सेशनल एग्ज़ाम है BS का वो ऑनलाइन हो रहा है। सो मोस्ट प्रोबेबली आपका जो मिड टर्म है शायद वो भी ऑनलाइन में ही जाएगा। मेरा ख्याल है 11 अप्रैल तक सिचुएशन नहीं है खुलने की, लेकिन आपको जो भी इंफॉर्मेशन होगी प्रिसाइज वो सिस्टम के थ्रू आ जाएगी। मेरे पास भी अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है सिवाय इसके कि फर्स्ट सेशनल ऑनलाइन लेना पड़ेगा इस वक्त, ठीक है। तो जो भी डिपार्टमेंटल न्यूज़ आपके पास आएगी वो थ्रू प्रॉपर चैनल आ जाएगी। अभी आप जहन में रखें कि मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक हमारा ऑनलाइन ही है, मोस्ट प्रोबेबली। लेकिन अल्लाह करे सूरत हाल अच्छी हो जाए। सो वी आर ऑल ओपन and we are willing to continue it as much as it is possible. मैम मुजाहिदा ट्रैवल कर रही है तो वो बोली थी कि उसकी अटेंडेंस मार्क कर दें, शायद वो कनेक्शन का इशू हो उसका। अटेंडेंस तो जनाब मैं मार्क करने लगी हूँ, लेकिन आज काफ़ी कम लोग हैं क्लास में, इसकी क्या वजह नहीं? 34 हो गए, शुरू में 31 थे। कौन है 2-3 लोग जो नहीं आ रहे? मैम हाँ जी मैम ये सही है, आप अटेंडेंस मार्क कर दें प्लीज। इधर काफी लाइटनिंग हो रही है तो नेट बंद हो जाता है बार बार। अच्छा ठीक, ये लाइटनिंग कहाँ पे हो रही है? हमारे पास तो आज धूप निकल आई है भाई। मैम कश्मीर में। अच्छा, यहाँ पे काफी अभी खराब है मौसम। अच्छा अभी खराब है। हमारे पास भी कल तक तो था, भी होगा आज भी। जी मैम मैं सोबिया जन्नत मैम, मैं थोड़ी लेट क्लास में आई थी। एक्चुअली मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, मैं अभी हॉस्पिटल से आई हूँ तो अच्छा, अभी इस वजह से मैं लेट हो गई थी।
जी जी मैम, अब ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, इसलिए मैं 10:50 पे आई थी क्लास में। अच्छा ठीक है, वो बस शुरू में मैं देख रही थी नंबर, फिर बाद में मैं जब आपके साथ डिस्कशन में थी कोर्स की, तो फिर उस वक्त तो मैंने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नहीं देखा बार बार, तो इसीलिए मैं पूछ रही थी। क्विकली मुझे बस 34 हैं, मुझे अंदाज़ा नहीं हो रहा कि कौन 3-4 हैं जो नहीं ले पा रहे। देखिए मेरे लिए अटेंडेंस मार्क करने से ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है कि अगर उनकी कनेक्टिविटी के कोई इश्यूज हैं एंड इफ़ वी कैन मैनेज टू हेल्प देम, सो वी आर रियली विलिंग टू डू सो। अगर आप लोग जानते हैं कि कोई कौन से 3-4 लोग ऐसे हैं जो नहीं ले पा रहे क्लास, तो मुझे उनके नाम मेंशन कर दें। मैम इजाजुल्लाह मैम एक तो मुजाहिदा ने बोला था मुझे। नहीं मुजाहिदा तो थी क्लास में, आज मैंने उसको देखा था। एजाज है, और एजाज ने नहीं ली अभी तक क्लास, पिछले दिन तो आ मैम रहा वो था। क्लासेस ले रहे हैं लेकिन उनका कनेक्टिविटी इशू है। हाँ वो मैं सुहेल से आज भी अपडेट लूंगी उसकी, कल फिर कैंपस ऑफ है तो आज मैं सुहेल से पूछूंगी एजाज के लिए। और कौन है जो नहीं आ रहा, क्योंकि कंटिन्यूसली आउट ऑफ 38 मेरे पास 34 की प्रेजेंस आ रही है, तो कोई ना कोई 3-4 लोग ऐसे हैं जो मिस कर रहे हैं। हमीदुल्लाह आप हैं? मैम लास्ट में इजाजत ली थी, लेकिन वो कह रहे थे कि मैं अफगानिस्तान में हूँ तो वहाँ पे सिग्नल इशू काफी है, तो हाँ कनेक्टिविटी मैंने इशू लिखा नहीं। था एजाज को, मेरे साथ भी उसकी बातचीत हुई है और मैंने उसको लिखा था कि बस वो कभी कहते हैं हॉस्टल के मसले थे, हम चले गए यहाँ से, तो वो अब प्रॉब्लम्स तो हैं। अच्छा हमीदुल्लाह क्लास में है? सोमिया महरीन? सोमिया महरीन भी नहीं है। समन सईद? प्रेजेंट मैम। सबाहत कयूम? प्रेजेंट मैम, प्रेजेंट मैम। अदनान खान? प्रेजेंट मैम। नूरुल ईमान? प्रेजेंट मैम, प्रेजेंट। मोहम्मद अतीक? प्रेजेंट मैम। अतीक आपने इन्होंने आपको ऐड कर दिया ग्रुप में? यस मैम। यस मैम। अच्छा ठीक है, क्योंकि मेरे पास भी पता नहीं 2 तरह के ग्रुप्स चल रहे थे, फिर मैंने एक में तो नोट लिखा था कि अतीक को ऐड करें, लेकिन बाद में फिर मुझे लगा कि ये तो किसी और ग्रुप में चला गया, वो आप ही ने बनाया हुआ है। कभी कोई आ रहा है कोई जा रहा है ग्रुप को, मुझे समझ नहीं आ रही है किस तरह से उसको आप मैनेज कर रहे हो। मैं आपसे बात कर रही मैम एक ही हूँ ग्रुप फजीला। हमने बनाया है सिस्टमेटिक। मैम हमने एक ही बहुत बनाया हुआ है बहुत खाना खाना सिस्टमेटिक्स लगा का। हुआ है, जिसका दिल कर रहा है आ रहा है, जिसका दिल कर रहा है जा रहा है, क्या चक्कर चल रहा है वहाँ पे? मैम कुछ जूबिया? स्टूडेंट्स ने लेट ज्वाइन किया था तो फिर वो बोल रहे थे कि अब प्रेजेंट बाद में मैम, जो है ऐड। प्रेजेंट। फिरा? प्रेजेंट मैम, आसिया प्रेजेंट। नदीम? प्रेजेंट मैम। मुबशिरा मुर्तज़ा? प्रेजेंट मैम। वकास खान? वकास खान? 3 को तो मैंने ढूंढ लिया जो एब्सेंट है। हफ्सा हुमा? एक्सक्यूज मी मैम। जी जी प्रेजेंट मैम। मैम मैं सोमिया महरीन प्रेजेंट हूँ। सौम्या मुझे पता चल गया आपका, तो मैं तो वकास की बात हफ्सा कर रही हुमा हूँ और प्रेजेंट। हमीदुल्लाह की बात कर रही हूँ। थैंक यू मैम। यस मैम। मैम आई एम आल्सो प्रेजेंट। कौन? हमीदुल्लाह। हमीदुल्लाह पहले मैंने 3 दफा आपकी अटेंडेंस मार्क करने की नेटवर्क कोशिश की, इशू आप चल रहा है बोले। मैडम। अच्छा चलो ठीक है जी, नेटवर्क इशू आपको है मैडम। बाकी 34-35 हो गए। सो विल बी मीटिंग अप ऑन फ्राइडे, ठीक है? एंड आई विल बी एक्सक्यूज मी पुटिंग द प्री डिटर्मिनेशन ऑन फ्राइडे, ठीक है? वैसे तो मैंने कहा था मैं हर उससे लेक्चर से पहले करूंगी, लेकिन एटलीस्ट वंस इन अ वीक इज अ मस्ट, सो आई विल बी पुटिंग अप ए काइंड ऑफ MCQ और काइंड ऑफ शॉर्ट क्वेश्चन, और फिर उसके बाद हम क्लास कंडक्ट करेंगे। और फ्राइडे वाले का मैं मार्क्स भी रखूंगी, आप अपनी आईडी शो अप करेंगे उसमें। जी मैम पूछो। जी कितना अब तक पढ़ाया है उस सब में से? नहीं, जो हमारा आज का लेक्चर और प्रीवियस लेक्चर था, यानी लास्ट फ्राइडे जो हमने शुरू किया था, फिनोटाइपिक द इम्पोर्टेंस ऑफ फिनोटाइप इन द मैम चैप्टर जीनोमिक एरा। 14 वाला जो है रिसर्च आर्टिकल हाँ और यानी इडियोलाइसिस। लास्ट फ्राइडे और आज की क्लास में हमने एक ही टॉपिक को कंटिन्यू किया है, सिर्फ इसमें से, ठीक है? यस मैम, थैंक यू मैम। चलें ठीक है जी, ओके, मैम अल्लाह वो हाफ़िज़। चैप्टर की स्लाइड शेयर कर दें आप, चैप्टर 1 और 2 के जो थी। चैप्टर 1 और 2 की यस स्लाइड्स, मैम, अच्छा अब आज तो मैंने वो हो देख गया। लिया।
क्विज भी। हाँ मैं भूल गई थी वाकई, मैं देखती हूँ, लेकिन मैंने कहा था चैप्टर 1 और 2 जब दोनों आपके पास है तो स्लाइड्स की जरूरत तो खैर नहीं है, लेकिन मैं कर देती हूँ शेयर आज, ठीक है। नहीं मैम वो डेफिनेशंस एक था ना, तो चैप्टर पढ़िए लेकिन स्लाइड ड्रॉप करते हैं। अच्छा ठीक है, मैं कर देती हूँ अभी। मैम ये Okay, आज जो thank आपने you, ma'am. आर्टिकल पढ़ाया ये तो आर्टिकल तो मैंने निकाला तो आज कोई और था, फिर ये मेरे पास पहले का खुला हुआ था तो इसलिए ये वाला उसमें शेयर कर दिया। ये 2017 का था, लेकिन इसके अलावा जैसे मैंने कहा था कि जिनको तो फ्लो ऑफ द प्रोसीजर क्लियर है उनको तो जरूरत नहीं है, लेकिन जिनको थोड़ा क्लियर नहीं है वो 2-3-4 आर्टिकल को निकाल के थोड़ा सा स्कैन करें ताकि उनको फ्लो ऑफ प्रोसीजर पता हो कि हाउ वी गो फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर द नोवेल स्पीशीज डिटर्मिनेशन, और व्हेन वी आर गोइंग फॉर द गेटिंग अप the novel microorganism out of the ecosystem, कोई भी diversity analysis वगैरह जब आप करते हैं तो कोई से भी आप निकाल सकते हैं। मैंने एक मैम हम पाकिस्तान कर लेंगे। हॉट स्प्रिंग आइसोलेट से था, या चुलिस्तान डेजर्ट का पेपर था।